السلام علیکم، آداب۔ زد نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کی ڈیل پر واضح انتباہ کے باوجود شمالی کوریا کے رہنما روس پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق نے یورپ میں قرآن جلانے کے واقعات کی مذمت کی۔ لیبیا میں طبی حکام کا بیان، کہا دانیال نامی سمندری طوفان کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 2800 جبکہ 5000 سے زیادہ افراد ابھی لاپتہ۔ مراکش میں جمعہ کی رات کو پوری طرز میں آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والے کی تعداد تقریباً 2900 کے قریب جبکہ 2500 سے زیادہ افراد ابھی ہیں زخمی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے سرکاری دورہ بھارت کے اختتام پر سعودی عرب اور انڈیا نے مشترکہ اعلان کیا جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کی ڈیل پر واضح انتباہ کے باوجود شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ روس پہنچ گئے ہیں۔ برطانوی خبر رسائی ادارے کے مطابق جاپانی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کرملن کا کہنا ہے کہ کم جونگ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ تفصیلی بات چیت کریں گے۔ شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا نے اتوار کو بتایا تھا کہ کم جونگ ان پیانگ سے اپنی نجی ٹرین کے ذریعے روس روانہ ہوئے ہیں اور وزیر خارجہ کے علاوہ اسلحہ سازی کی صنعت کے حکام اور اعلیٰ فوجی حکام بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ جاپان کی نیوز ایجنسی کے مطابق عہدیدار کا نام ظاہر کیے بغیر منگل کو بتایا کہ کم جونگ ان کو لانے والی ٹرین خاصا کے اسٹیشن پر پہنچ گئی جو شمالی کوریا سے روس سے مشرقی بعید تک جانے والی مرکزی گیٹ وے پر۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ کم جونگ آج صبح سویرے روس پہنچ چکے ہیں۔ شمالی کورین رہنما کم جونگ ان بیرون ممالک سے زیادہ سفر نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ دوسرے ممالک زیادہ نہیں جاتے ہیں۔ وہ اپنے 12 سال کے اقتدار کے دوران صرف 7 بار ہی ملک سے باہر گئے ہیں، جن میں 4 دورے ان کے سیاسی اتحادی چین کے ساتھ۔ کرملن ترجمان دمیتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ ایک جامع دورہ ہوگا، ان میں دونوں وفود کے درمیان مذاکرات ہوں گے اور اگر اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی تو دونوں رہنما آن وین ملاقات بھی کریں گے۔ خاصان میں موجود سرکاری عہدیداروں نے کم جونگ ان کے روس پہنچنے کی رپورٹس پر بات کرنے سے اعتراض کیا ہے۔ امریکی حکام نے اس سے قبل ہی کہہ دیا تھا کہ شمالی کوریا کے رہنما کا دورہ روس قریب ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ہتھیاروں کے حوالے سے بات چیت فعال طور پر آگے بڑھ رہی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ روسی صدر کم جونگ ان سے یوکرین کی جنگ کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی پر بات کریں گے۔ روس کی تاس نیوز ایجنسی کے مطابق پیر کو صدر پوتن اپنے ایک جگہ پہ پہنچے تھے جہاں اکنامک فورم جو ان کا ہے وہاں پہنچ کر مکمل سیشن میں شرکت کی جو بدھ کل تک جاری رہے گا۔ دمیتری پیسکوف کا کہنا تھا کہ پوتن کی کم جونگ سے ملاقات کی سیشن کے بعد ہوگی۔ روسی نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں لیڈرز کے درمیان کوئی نیوز کانفرنس شیڈول نہیں ہے۔ اس بات کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی اکنامک فورم کا اجلاس کہاں ہوگا اور اس میں کم جونگ اکنامک فورم سے اجلاس میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ Publicly for some time now that arms negotiations between Russia and the DPRK are actively advancing. As you all know, some of you reported that last month Sergei Shoigu, the Russian defense minister, traveled to the DPRK to try and convince Pyongyang to sell artillery ammunition to Russia. And we have information that Kim Jong-un expects these discussions to continue, to include leader-level diplomatic engagement in Russia. Providing weapons to Russia for use on the battlefield to attack grain silos and the heating infrastructure of major cities as we head into winter, to try to conquer territory that belongs to another sovereign nation, this is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this in the international community. We have also imposed sanctions, specific targeted sanctions, to try to disrupt any effort to use North Korea as a conduit or as a source for weapons going to Russia. امریکی محکمہ خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ امریکہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت یا ایک امیدوار کی حمایت نہیں کرتا۔
پیر کو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سے امریکی سفیر کے ملاقات پر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ پاکستان میں انتخابات کے نتائج پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتا. انہوں نے کہا کہ ملاقات پر امریکی سفارت خانے ہی جواب دے سکتا ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر زور دیتا ہے. ترجمان میتھو ملر سے سوال ہوا کہ افغانستان کی معیشت اور ڈالر کے مقابلے میں مقامی کرنسی پاکستان کے مقابلے میں مستحکم ہے. اس پر میتھو ملر نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں معیشت بہتر ہو. امریکہ پاکستان میں ان اصلاحات کی حمایت کرتا ہے جن کے ذریعے پاکستانی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور امریکہ ان کی اصلاحات کی حمایت جاری رکھے گا. 24 اگست کو اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی تھی. امریکی سفارت خانہ کے ترجمان کے مطابق امریکی سفیر نے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی کروائی. امریکی سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان سے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخابات کرنا اور انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے. Hello everyone, good to see you. Been a while since I've been here. You abandoned us. Yeah, I'll raise this just a bit. Didn't abandon you, I was in Ukraine and elsewhere, New Delhi. I do not have any opening comments today, so Matt? Okay, well, I can't say that I hold a whole lot of hope that you'll have much of an answer to this, but I just want to ask what you guys make of the whole Putin Kim Jong-un thing, what it means to you or what it suggests to you about the state of the Russian war machine, and also what it means in terms of North Korea. I'll say a few things about it. First, I think it's important to put it in overall context, which is a year and a half ago, President Putin launched this war against Ukraine with its full-scale aggression with a dream of restoring the glory of the Russian Empire. That hope, that expectation of his has failed. It will continue to fail. And I think there's no better evidence of that than now, a year and a half later. Not only has he failed to achieve his goals on the battlefield, but you see him traveling across his own country, hat in hand, to beg Kim Jong-un for military assistance. And the fact that it comes just after the G20 this weekend, where President Biden was there meeting with his fellow counterparts, leaders of major countries in the world, and President Putin was nowhere to be found, I think largely because of his own international pariah status that he has foisted upon himself through his actions. So in terms of what it means going forward, I think obviously it means that he is having trouble sustaining the military effort, and so is looking for help from North Korea. And in terms of what our reaction will be to it, so we're going to monitor very closely the outcome of this meeting. I will remind both countries that any transfer of arms from North Korea to Russia would be in violation of multiple United Nations Security Council resolutions. And we, of course, have aggressively enforced our sanctions against entities that fund Russia's war effort, and we will continue to enforce those sanctions and will not hesitate to impose new sanctions if appropriate. اقوام متحدہ کے مشترکہ کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ٹرک نے یورپ میں قرآن جلانے کی واقعات کی شدید مذمت کی ہے. اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق نے انسانی وقار کو محفوظ کرنے پر زور دیا. عرب نیوز کے مطابق والکر ٹرک کا بیان اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کونسل کے 24ویں سیشن کے جنیوا میں افتتاحی سیشن میں سامنے آیا. اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس کے دوران 6 اکتوبر کو قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کے واقعات پر غور کیا جائے گا. ڈنمارک اور سویڈن میں جولائی کے دوران کئی احتجاج ہوئے جس کے دوران قرآن کے نسخے جلائے گئیں. ان واقعات سے دنیا کے مسلمان یعنی دنیا بھر کے جو مسلمان ممالک ہیں اس میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی تھی اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا. مختلف مسلم ممالک نے ان ممالک پر زور دیا تھا کہ قرآن جلانے پر پابندی عائد کی جائے. اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس میں انسانی حقوق کی کئی دیگر ایشوز پر بھی غور و خوض کرے گی.
लीबिया में तिब्बी हुकाम ने कहा है कि दानियाल नामी समुद्री तूफान के बाद हलाकतों की तादाद 28 से हो गई है, जबकि 5000 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक समुद्री तूफान मिस्र के साहिलों से टकरा रहा है, ताहम इसकी शिद्दत में काफ़ी कमी आई है। लीबिया के तिब्बी हुकाम का कहना है कि दरना, शहाद, बीजा और करबो जवार के इलाके आफतज़दा हैं, जिनमें इमदादी कामों के लिए आलमी इदारों से मदद की अपील की जाती है। लीबिया के हिलाल अहमर इदारे ने कहा है कि मुतासरा इलाकों में हलाकतें सैलाबी रेलों में डूबने की वजह से हुई है या मकानात गिरने की वजह से हुई है। इदारे ने कहा है कि आफतज़दा इलाकों में कम बेश 7000 ख़ानदान महसूर हैं जिन तक इमदादी इदारे नहीं पहुँच सके। दूसरी तरफ लीबिया की वजारत दाखिला ने कहा है कि मुल्क में आने वाली आफत इंतहाई हौलनाक और भयानक है, जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। इस वक्त पूरे से पूरे महल्ले और आबादियाँ ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि कई महल्लों की रिहाइशों को सैलाबी समुद्र में बहा कर ले गया। सैलाबी रेलों की शिद्दत की वजह से आफतज़दा इलाकों में 3 डैम टूट चुके हैं, जबकि मज़कूरा इलाके 12 मंजिला इमारतें मुनहदिम हो गए। दरियासना दानियाल समुद्री तूफान में मिस्री साहिलों से टकरा जा चुका है, जिससे मुर्सी, मतरूब और अस्कंदरिया मुतासर हुए हैं। ज़राए का कहना है कि दानियाल तूफान की वजह से साहिली इलाकों में तेज़ हवा, ठंड और घने बादल छाए हुए हैं। मिस्री महकमे मौसमियात ने कहा है कि सईद और काहिरा गर्द आलूद तेज़ हवा के जर्द में है, जबकि बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की तवक्का है। मराकश में जुमा की रात कुवैत में आने वाले ज़लज़ले से हलाक होने वाले की तादाद तकरीबन 2900 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 2500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक 1 सदी से ज़ायद अरसे में मुल्क में आने वाली सबसे तबाहकुन ज़लज़ले की वजह से शहरी अब भी खौफज़दा हैं और उन्होंने चौथी रात भी बाहर खुले आसमान के नीचे गुजारी। दूसरी जानिब मराकश की हुकूमत तबाहकुन ज़लज़ले के बावजूद मुल्क में IMF और वर्ल्ड बैंक की इजलास मुनक़्क़िद करना चाहती है। मामले की आगाही रखने वाली ज़राए का कहना है कि मराकश की हुकूमत चाहती है कि शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर में बैनुल अक़वामी मालियाती फंड्स और वर्ल्ड बैंक की सालाना इजलास मुनक़्क़िद होंगे। इस सिलसिले में अभी तक प्लान में कोई तब्दीली नहीं आई है। IMF और वर्ल्ड बैंक में होने वाली इजलासों पर मराकश के मौक़िफ़ पर तबसरा करने से गुरेज़ किया, ताहम दोनों इदारों का कहना है कि फ़िलहाल इनकी तवज्जो ज़लज़ले से होने वाली तबाही और इमदादी कार्रवाइयों पर है। IMF और वर्ल्ड बैंक के ये इजलास 2021 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से 2 मरतबा मुलतवी कर दिए गए हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक हर 3 साल में अपनी इजलास तरक्की पसंद मैशियत वाली मुल्क में मुनक़्क़िद करती है, जिसने मजबूत मुआशी पॉलिसी और अच्छी हुक्मरानी का मुज़ाहिरा किया। 6.8 की शिद्दत के ज़लज़ले रवायती सुर्ख मिट्टी के घरों को मलियामेट कर दिया है। मुतअद्दिद देहात के मकीन मलबे तले दबे हैं, अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर हैं। तनवील गांव का तकरीबन हर घर तबाह हो गया है और इसके तमाम मकीन अब बेघर हैं। 59 साल के मोहम्मद अल हसन इस वक्त खाना खा रहे थे जब ज़लज़ला आया। ज़लज़ले के दौरान उनके 31 साल के बेटे घर से फ़ौरन निकल गए, ताहम हमसायों की छत उनके ऊपर गिर गई। मोहम्मद अल हसन का कहना है कि उनके बेटे को तलाश किया गया, लेकिन वो उनको जिंदा नहीं मिले। ज़लज़ले के वक्त मोहम्मद अल हसन अपने अहलिया और बेटे के साथ घर ही में मौजूद थे और वो बच गए। मराकश के फौज ने कहा कि इमदादी सरगर्मियाँ जारी है और मुतासिरा इलाकों में पानी, खुराक, खीमा और कंबल फराहम कर रही है। मिस्री हुकूमत ने कहा है कि मिस्र आने वाले सयाहों से $1000 फीस ली जाने की इत्तला दुरुस्त है। अक्कास अखबार के मुताबिक मिस्री हुकूमत ने पीर को एक बयान में कहा कि सयाहों से $1000 फीस लेने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। मिस्र आने वाले सयाहों से कोई नई फीस नहीं ली जा रही है। तक सियाहती वीज़े पर मुतअद्दिद मुल्कों के सयाहों से जो फीस ली जा रही है वो बरकरार है, कोई नई फीस नहीं लगाई गई है। मिस्री हुकूमत ने बताया कि $1000 फीस का ताल्लुक सियाहत के लिए आने वाले सयाहों से नहीं, बल्कि उसका ताल्लुक मिस्र में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम तारिकीन वतन के क़याम को कानून के दायरे में लाने से है। मिस्री हुकूमत ने बताया कि $1000 फीस जमा कराने की हिदायत पर गैर कानूनी तारिकीन वतन को की गई है ताकि उनका क़याम कानून के दायरे में आ जाए। उनसे कहा गया है कि मिस्र में सियाहत या किसी गर्ज से अपने क़याम को कानून के दायरे में लाने के लिए फ़ीस जमा कराए। मिस्री हुकूमत ने इस सिलसिले में देकर तफसीलात भी मीडिया को जारी कर दी है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के सरकारी दौरे भारत के इख्तिताम पर सऊदी अरब और इंडिया ने पीर को मुश्तरका ऐलान जारी किया है। एलानिया में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हालिया दौरे के मौके पर मफाहती याददाश्त व ताउन के प्रोग्राम और मुआहदों पर दस्तखत का खैर मकदम करते हुए कहा गया कि इससे तवानाई, सरमायाकारी, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सनअत के शोबों, समुद्री के खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने और बदअमनी को रोकने में मदद मिलेगी। दोनों मुल्कों के अवाम तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात के जायजा लेते हुए कहा गया कि दोनों मुल्कों की ताल्लुकात, एतमाद, बाहमी अफ़ाम तफ़हीम, खैर सगारी ताउन, एक दूसरे के मफादात के एहतराम पर मबनी है। ये ताल्लुकात मुतअद्दिद शोबों खुसूसन
सियासत, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दफा, अमन व सलामती और सकाफत के शोबे में वसी और गहरे हुए हैं। एलानिया में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के हजूम में इजाफे को सराहते हुए कहा गया है कि दोतरफा तिजारत में तनाव पैदा करने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएगी और पेश आने वाली किसी भी रुकावट को दूर किया जाएगा। दोनों मुल्कों के प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे राब्ते बढ़ाएंगे, सरमायाकारी और तिजारती प्रोग्राम करके नए इम्कानात तलाश किए जाएंगे और उन इम्कानात को शराकत में तब्दील किया जाएगा। दोनों मुल्कों ने बैन अक़वामी मईशत को दरपेश अहम चैलेंजों से मिलकर निपटने का भी अज़्म ज़ाहिर किया है। इस अज़्म का इजहार किया गया है कि तवानाई शोबों में ताउन को स्ट्रैटेजिक शराकत के अहम सुतून के तौर पर लिया जाएगा। बैन अक़वामी तेल की मंडियों में इस्तेहकाम, तेल पैदा करने और खरीदारी वाले ममालिक के दरमियान ताउन और मुकालमे की अहमियत पर जोर दिया गया। मुश्तरका एलानिया में आलमी मंडियों में एनर्जी सप्लाई के जराए से सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। सऊदी अरब ने इंडिया को खाम तेल की सप्लाई का काबिल एतमाद पार्टनर और एक्सपोर्टर बने रहने का अज़्म अदा किया है। दोनों मुल्कों में पेट्रोल को पेट्रोकेमिकल में तब्दील करने के लिए नई मुश्तरका मंसूबे तैयार करने पर भी इत्तफाक राय सामने आया है। इंडिया के मगरबी साहिल के ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा तेजी से मुकम्मल करने पर भी इत्तफाक किया गया। इंडिया ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब के तरक्याती मंसूबे में इंडिया की कंपनियों, प्रोफेशनल वर्कर्स और लेबर को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाएगा। सऊदी अरब ने इंडियन विजन 2047 की तारीफ की। ऐलानिया के मुताबिक फरीक़ैन ने तय किया कि सऊदी अरब में मुक़ीम इंडियन शहरियों के लिए रुपया कार्ड समेत अदायगी के सेमेस्टर्स में ताउन के मौके तलाश किए जाएंगे। खुसूसन हज व उम्रा ज़ायरीन को अदायगी के सिलसिले में सहूलतों के अलावा मालियाती टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन के लिए मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। ऐलानिया में इंडिया और GCC के ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारत के मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाने की सपोर्ट की गई है। सऊदी अरब और इंडिया के प्राइवेट सेक्टर ज़राअत के शोबे और खुराक की सनतों में बड़े मुश्तरका मंसूबे शुरू करेगी। दोनों मुल्कों ने दफा के शोबे में ताउन जारी रखने, मुश्तरका फौजी मशकों समेत दफाई ताउन को बढ़ते हुए मयार पर इत्मीनान का इजहार किया है। 2021-2023 में मुश्तरका बहरी मशकों पर इत्मीनान जाहिर किया गया। जून 2022 के दौरान नई दिल्ली में मुनक़िदा दफाई ताउन की मुश्तरका कमेटी के 5वें इजलास के नताइज का खैर मक़दम किया गया। कोल्हापुर के खुसूसी IG सुनील फुलारी ने कहा है कि आमतौर पर शहरियों से अपील करते हैं कि वो किसी भी शरारती पोस्ट और अफवाहों का शिकार न हो। महाराष्ट्र के सतारा में सोमवार की सुबह कुछ नाकाबिल एतराज़ सोशल मीडिया पोस्ट पर ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दी और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। कोल्हापुर के खुसूसी IG सुनील फुलारी ने कहा कि हम आमतौर पर शहरियों से अपील करते हैं कि वो किसी भी शरारती पोस्ट और अफवाहों का शिकार न हो। सतारा जिले में इम्तनाई हुक्म जारी किया गया है। 2 रोज़ के लिए इंटरनेट बंद करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। लिहाजा अमूमी तौर पर सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है और अब ये मामूल है कि हमारी निगरानी मुस्तक़बिल भी जारी रहेगी। एहतियाती तदाबीर के तौर पर फौज के काफ़ी तैनात है। हमने सतारा और आसपास के अजला से मुनासिब पुलिस अफसरान और अहलकार फराहम किए हैं। सतारा जिले में मसला गार्ड्स और मोबाइल पेट्रोलिंग तैनात की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिका की जानिब से हथियारों की डील पर वाज़ेह दबा के बावजूद शुमाली कोरिया के रहनुमा रूस पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने यूरोप में कुरान जलाने के वाक़यात की मज़म्मत की। लीबिया में तिब्बी हुकाम का बयान, कहा दानियाल नामी समुद्री तूफान के बाद हलाकतों की तादाद 2800 जबकि 5000 से ज़्यादा अफराद अभी है लापता। मराकश में जुमा की रात को पूरी तुर्क में आने वाले ज़लज़ले में हलाक होने वाले की तादाद तकरीबन 2900 के करीब जबकि 2500 से ज़्यादा अफराद अभी हैं ज़ख्मी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सरकारी दौरे भारत के इख्तिताम पर सऊदी अरब और इंडिया ने मुश्तरका ऐलान किया जारी। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.